Hello everyone, welcome back. Now we are going to study about the cancer. Every day around most of the people are going to diagnose with the cancer and they will be undergoing in a panic situation. So now we are going to study about the cancer, how it is going to happen, how it is going to spread, then how to diagnose and what are the method to prevent it. And you will understand these all things like you understood never before. So let's start one by one simply. So and scientifically, what is going to happen in case of cancer? The word cancer, it means this word is derived from the word carcinos. Carcinos means crab. Like once the crab hold a particular part of anybody, so it's difficult to get rid from that part. So like that, once the cancer is going to happen, so sometime it will become, depending on the type of cancer, it's difficult to overcome from this kind of disease. Now let's start. What is in by cancer, how it is going to happen, and what is in by cancer. So कैंसर का मतलब क्या होता है कि ट्यूमर फॉर्म होना। यहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन, हाउ द ट्यूमर इज गोइंग टू फॉर्म, व्हेन एनी सेल इज गोइंग टू multiply at an uncontrolled manner. Uncontrolled growth of cell is called as tumor. So what is going to happen? Normally the cell division is going to happen in a cell by cell cycle and cell division method. In the cell cycle we can see G1, S, G2 and M. 4 phases are there. For G1 there are 11 hours, for S there is 8 hours, for G2 there is 3 hours and 1 hour is for M phase. So normally what happened, suppose my this particular part is damaged because of injury or something happened. So now the cell is going to divide to take a part of how much cells are lost. So the cells which are newly growing, they will be in a contact with the cells which are needed over there. They have the contact with the other cell, that is called as their contact is there. But in case of cancerous cell, when they are going to multiply at an uncontrolled growth, they will lose the contact inhibition. Means see, uncontrolled cell proliferation is, that is uncontrolled growth of cell is tumor, and they will grow external growth factor and they will invade the new site. इन्वेड न्यू साइट का मतलब क्या होता है कि ट्यूमर जब बोले कोई सेल के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है एट एन अनकंट्रोल्ड मैनर, तो उनसे क्या होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। ये सेल है, अनकंट्रोल ग्रोथ होकर उसका क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस है। जब बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हुए तो उससे क्या फॉर्म हुआ, ट्यूमर। कैसे फॉर्म हुआ बोला मैंने, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, जिसके ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। अब ट्यूमर फॉर्म हुआ, जब भी नया ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं नियोप्लेशिया। नियोप्लेशिया मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर। नियोप्लेशिया, नियो मीन्स न्यू, ट्यूमर फॉर्म हुआ। क्यों फॉर्म हुआ बोला, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हुआ। अब ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट, जो हम आगे और देखने वाले। बेनाइन हार्मलेस होता है, मैलिग्नेंट हार्मफुल होता है। तो ये जो हार्मफुल ट्यूमर है वो ब्लड से स्प्रेड होना एक पार्ट से दूसरे पार्ट, उसको बोला जाता है मेटास्टासिस। व्हाट इज बाय मेटास्टासिस, ट्यूमर जो फॉर्म हुआ है बॉडी के अंदर, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं मेटास्टासिस। और जो कैंसरस सेल है उनके अंदर क्या चेंजेस देखेंगे, न्यूक्लियस इरेगुलर होगा, अबंडेंट ग्रैन्युल्स होगा, लाइसोसोम बढ़ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डेब्री बढ़ जाएगी, सो ऑन, ये सब चीजें दिखेंगी। उसके बाद नॉर्मल सेल के अंदर क्या बोले कि एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, जब तक वो काम करता है, डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन होता है। जब जीवन फेज होती है सेल साइकिल के अंदर, हम देखते हैं जीवन फेज, सेल डिवाइड होने के बाद अब सेल और फर्दर डिवाइड होना है नहीं होना है, वो जीवन में डिसाइड भी होता है एक जगह, जहां पे G0 स्टेज आती है। G0 स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। अब ये साइंटिफिकली जिसने सेल डिवीजन पढ़ा उसको समझ में आता है। तो वहां से सेल डिफरेंशिएट होना G0 स्टेज में जाएगा, क्विसेंट फेज में, और वहां से चेक पॉइंट होता है G1 टू S, फिर G2 टू M, ये चेक पॉइंट्स है। तो डिफरेंशिएशन अगर नहीं हो रहा और सेल्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तब उनसे ट्यूमर तैयार हो रहा है।
जो कैंसरस सेल होते हैं उनके अंदर क्या दिख रहा है हमको कि कांटेक्ट इनहिबिशन उनके अंदर लॉस हो जाएगा। नॉर्मल सेल स्टॉप ग्रोइंग व्हेन दे कांटेक्ट विद द अदर। अब समझ में आ रहा है कि जब नॉर्मल सेल दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट में, तो जितने सेल का रिक्वायरमेंट था जो लॉस हो गए और वहां पर नए सेल चाहिए थे, तो उतना नॉर्मली होता है। बट जब ये कांटेक्ट इनहिबिशन स्टॉप हो गया या प्रॉब्लम आए और सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो उससे ट्यूमर तैयार होगा। कैंसर सेल लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली। इसी के ऊपर तो इसका नाम रखा है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ट्यूमर, मतलब ही कैंसर, ट्यूमर फॉर्म होना। और ट्यूमर फॉर्म होगा और नई ट्यूमर फॉर्म हुई तो नियोप्लासिया, ये बोले नियोप्लाज्म। कैंसर सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म, बोले ये। तो उसके बाद मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में देखे तो माउथ कैंसर और थ्रोट कैंसर होता है। वुमन में देखे तो यूटेराइन सर्वाइकल कैंसर। और February 4 को वर्ल्ड कैंसर डे होता है और अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, डिफरेंट काइंड के रिबन्स होते हैं डिफरेंट काइंड के कैंसर के लिए। वन बाय वन हमको आगे देखना है, इसलिए डिटेल थोड़ा आगे बोलते जाऊंगा क्योंकि आगे और है। अब देखिए ये बोल चुके कैंसर अबनॉर्मल किसको कैंसर बोलते हैं, जब बॉडी के अंदर सेल्स अनकंट्रोल्ड मैनर में मल्टीप्लाई हुए, बोल चुके हैं। देन कैंसर अबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, जिससे ट्यूमर फॉर्म हुई, इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस हो गया। और बोले ट्यूमर जो रहते हैं वो दो टाइप के होता है, एक बेनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल से जब ट्यूमर फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, ट्यूमर मतलब गांठ, वो तैयार होती है तो वो दो टाइप की, एक बेनाइन है एक मैलिग्नेंट है। बेनाइन ट्यूमर हार्मलेस होती है, इससे कुछ नहीं होगा, हार्मलेस है ये। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है दैट इज हार्मफुल। वाई बेनाइन इज हार्मलेस एंड वाई मैलिग्नेंट इज हार्मफुल? जब बेनाइन ट्यूमर तैयार होता है तो उस ट्यूमर के अंदर ये ऐसे बाहर से अगर देखे उसको, ये बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई हुए, इसी को ट्यूमर फॉर्मेशन बोले। और इस ट्यूमर पे ऐसी एक कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। और ये ट्यूमर ब्रेक नहीं होता है, तो इस ट्यूमर को सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है, रेडिएशन के थ्रू इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है ट्रीटमेंट से। और कोई लॉस जनरली बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं होगा, मतलब इस ट्यूमर से, इसलिए कंपैरेटिवली हार्मलेस है मैलिग्नेंट के कंपैरिजन में। और मैलिग्नेंट में क्या होता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ये नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फूट जाएंगे। कैसे फूट जाएंगे, यहां पर देखिए, ये बेनाइन में बोले हम ऐसा रहता है, ये बेनाइन ट्यूमर है। ट्यूमर दो टाइप के, बेनाइन मैलिग्नेंट, बेनाइन हार्मलेस और मैलिग्नेंट हार्मफुल। तो इसके ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसकी वजह से ये स्प्रेड नहीं होता है, और इसके अंदर ऐसे लेयर नहीं होने की वजह से ये स्प्रेड होता है। और स्प्रेड जब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, उनके सेल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट जहां पर गए वहां पर भी कैंसर डेवलप होता है, उस फेनोमेनन को मेटास्टैसिस बोलते हैं, इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए बेनाइन ट्यूमर के अंदर ये डिफरेंट बोले, टंग, जिंगिवा, जिंगिवा मतलब ये गम, हमारे जो गम होते हैं इनको, मतलब यहाँ पर एक अमीबा भी हार्म करता है, इंटामीबा जिंगवालिस, ये ऐसा स्वेलिंग हो जाता है। तो ये फाइब्रोमा बेनाइन ट्यूमर, फाइब्रोमा जहां पर भी वर्ड ओमा आता है उसका मतलब ट्यूमर रहता है, आगे और बोलूंगा मैं। तो ये देखिए बेनाइन ट्यूमर कन्फाइंड टू द प्लेसेस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड दे डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट, मतलब ये जो पार्ट में ट्यूमर हुआ वो वहीं पर रहेगा, बेनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं होती है। ऐसे गांठ दिखती है बाहर कहीं पर, सपोज यहाँ पे आगे दिख रही है, यहाँ पर आगे दिख रही है, तो ऐसा रहता है ट्यूमर, बट उसको निकाला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैलिग्नेंट में हार्मफुल है बोला, तो इससे डैमेज बहुत कम होता है। और जो मैलिग्नेंट बोले, मैलिग्नेंट हार्मफुल है, तो ये बोल चुके कन्फाइंड टू ओरिजिन साइट, स्प्रेड नहीं होगा, बॉडी को ज्यादा लॉस नहीं होता। और मैलिग्नेंट पहले स्लोली ग्रो होता है जिसको लैटेंट फेज बोलते हैं, बाद में ये स्प्रेड होते जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट, ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है उसके थ्रू। उसके बाद फॉर्म्स द सेकेंडरी ट्यूमर जिसको मेटास्टैसिस बोलते हैं, इसको बोले सेल इन्वाइड करना, मतलब आक्रमण करके आगे वो जाता है।
ये मैलिग्नेंट में बोले मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल दैट ग्रो रैपिडली एंड इनवैड, इनवैड मतलब ये आक्रमण कर रहा है, इनवैड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ दे स्टार्व नॉर्मल सेल्स बाय कॉम्पिटिंग विद फॉर द न्यूट्रिशन। अब क्या बोला, ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ, जब भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं बोला कि सेल मल्टीप्लाई हो रहे फास्ट, और जब भी कोई सेल फास्ट हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, तो उन्हें बाकी जो दूसरे सेल नॉर्मल थे उनका न्यूट्रिएंट खाता है। हमारे शरीर में देखो नॉर्मली अभी नॉर्मल सेल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो रहा है, पर जब कैंसर हो रहा है तो ये कैंसरस सेल है। अब जो कैंसरस सेल है हमारे अंदर, ये सेल ये नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में अलग है, ये नॉर्मल सेल है और ये सपोज कैंसर वाली सेल है, ये सेल में और ये सेल में फर्क है। अब ये सेल क्या करेगी, नॉर्मल सेल का भी न्यूट्रिएंट लेता है, तो मतलब इनको इससे कंपटीशन करना पड़ रहा है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, और कंपटीशन करना पड़ रहा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा लग रहा है। कभी ऐसा भी होता है कैंसर के अंदर पेशेंट को ज्यादा भूख लगती है, हमको लगता है अच्छा हो रहा है, पर वैसे नहीं, कैंसरस सेल न्यूट्रिशन ज्यादा ले रहा है, तो सेल्स स्लग ऑफ फॉर्म द ट्यूमर रिच टू द साइट्स वेयर द ब्लड एंड दे फॉर्म द न्यू ट्यूमर। नई ट्यूमर फॉर्म होना उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। यहां पर बोल चुका मैं कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये फूट जाती है, इसलिए ये मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मतलब ही हार्मफुल, और स्प्रेड हो गया दूसरे पार्ट पे, और वहां पर क्या करेंगे वो और डिसीज करेंगे वैसे। अब देखिए जो कैंसर है ये होने का रीजन क्या है, किसके वजह से कैंसर होता है। बहुत सारी चीजें कि जो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर होने के लिए, तो क्या क्या है, तो देखो मेनली दो चीजें बोलते हैं, एक फिजिकल एजेंट है और एक केमिकल एजेंट है, तीसरा बायोलॉजिकल है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब डिफरेंट काइंड के रेडिएशंस जो रहता है, जैसे अगर हम सपोज फोन को देखें, मोबाइल में हमको पता है इसके अंदर सार नाम का रेडिएशन होता है, एस आर वैल्यू, सार नाम का रेडिएशन है। सार वैल्यू इंडिकेट करता है कितना रेडिएशन होता है। रेडिएशन मतलब हीट ट्रांसफर होना वेव के थ्रू, उसको रेडिएशन बोला जाता है। तो किसमें से किस टाइप के रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहे, कितने पावरफुल है, वो बॉडी के सेल्स को हार्म करते हैं, कैसे तो देखना है। तो फिजिकल एजेंट मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो आयोनाइज करता है, आयोनाइजेशन करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एक्सरे, गामा रे, एक्सरे हमको पता है एक्सरे कैसे तैयार होता है, कहां पर यूज करता है। एक्सरे का दूसरा नाम रॉन्टगेन रेस है, हम चेस्ट का एक्सरे सो ऑन निकालता है। और उसके बाद गामा रेस जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है, लाइक यूरानियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो भी है, उनमें से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन रिलीज होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। और गामा रेस सबसे हाई पेनिट्रेशन वाले होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर थिक अगर लोहे का भी डब्बा हो तो उसमें से आर पार जा सकते हैं गामा रेस। और ऐसे रेस जब बॉडी के आर पार जाएंगे तो सेल्स को डैमेज करेंगे। जैसे किसी आदमी को एकदम अचानक बहुत बड़ी दुखद खबर सुना दी जो उसके बस की नहीं, अचानक झटका लगेगा उसको, ये वैसा होता है सेल के लिए जब ये रेडिएशन अंदर जाता है। तो लाइक यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, वन बाय वन और डिटेल में देखना है। केमिकल मतलब ये बहुत सारे टोबैको, मेजर कॉज ऑफ लंग, टोबैको, तंबाकू, निकोटियाना रस्टिका, निकोटियाना टोबैकम, इस टोबैको का नाम है। टोबैको के अंदर निकोटिन, निकोटियानाइन होता है, बट मोस्टली कैंसर होने के पीछे निकोटिन के कंपैरिजन में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैंसर करता है। जो ये केमिकल, ये जो चीजें कैंसर करती है, इनको कार्सिनोजन बोला जाता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज कार्सिनोजन। अब ये वॉल है, पेंट ये वो लगा, इसमें केमिकल यूज करे, वो भी कार्सिनोजन है। डे बाय डे ये जो कैंसर करने वाले कार्सिनोजन है, इनकी लिस्ट बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो भी चीज सेल को डैमेज करेगी, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करेगी, उसको कार्सिनोजन बोला जाएगा। टोबैको स्मोक मेजर कॉज, विनिल क्लोराइड, वो पाइप होता है अपना पीवीसी, विनिल क्लोराइड। कैफीन कॉफी के अंदर का, टी के अंदर निकोटीन बोला मैंने, मस्टर्ड गैस, देन ऑन्कोजेनिक वायरस। अब ऑन्कोजेनिक मतलब क्या होता है, देखो कैंसर किसी को भी हो सकता है। कैंसर के लिए जो जीन होते हैं वो ऑन्कोजीन होते हैं, जो मेरे में भी है, आप में भी है, बट वो जिसमें एक्टिवेट हो जाएंगे उसको कैंसर होगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे एक्टिवेट हो जाता है, कैसे एक्टिवेट हो जाता है, तो रीजन यहां पे बोल देना कि फिजिकल एजेंट उसको एक्टिवेट करेंगे, केमिकल एजेंट उसको एक्टिवेट करेंगे,
बायोलॉजिकल एजेंट एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ट्यूमर तैयार होगा, किस टाइप का, बेनाइन या मैलिग्नेंट। बेनाइन अर्थ हार्मलेस है, मैलिग्नेंट हुआ हार्मफुल है। फिर कहां पे कैंसर करेगा, किस लोकेशन पे, तो वो और आगे देखना है हमको। तो ऑन्कोजेनिक वायरस, अब ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब एक आरएसवी नाम का वायरस है, राउस सार्कोमा वायरस, ये कैंसर कर सकता है। जिनको एड्स हो जाता है, एड्स डिसीज का नाम नहीं, स्टेज का नाम है, मैंने फुल वीडियो बना, उसके ऊपर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो एड्स के अंदर भी एक कैंसर होता है जिसका नाम है कैपोसिस सार्कोमा। तो देखो एचआईवी वायरस की वजह से भी कैंसर हुआ, आरएसवी राउस सार्कोमा वायरस इससे भी होता है। तो मतलब ऐसे वायरस है, रेट्रो वायरस है। सेल्यूलर ऑन्कोजिन, सी ऑन्कोजिन और प्रोटो ऑन्कोजिन, व्हेन ये नॉर्मल सेल को ऑन्कोजेनिक, मतलब ये बोले हम कि नॉर्मल सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट करना। कहीं कहीं पर तो ऐसा बोलते हैं मतलब समझा जाता है कि कुछ सेल को ऑक्सीजन, जहां तक मैंने पढ़ा है वहां पे, कि कुछ सेल को ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है तो भी वो सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होती है। बोलूंगा आगे। और देखो कॉजेस बोला मैंने, ऑन्कोजेनिक एजेंट, ऑन्कोजेनिक, कैंसर का जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, उनको बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर के स्टडी को भी ऑन्कोलॉजी बोलेंगे। तो वैसे तो रेडिएशन की वजह से कैंसर होगा। रेडिएशन केमिकल जो म्यूटेशन करता है, मतलब सडन इनहेरिटेबल चेंज होगा जीन के अंदर, उसको म्यूटेशन बोलता है। डीएनए के अंदर रेडिकल फॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन, ये जो केमिकल होता है वो हार्म करता है, थायमिन डाइमर फॉर्म करेंगे। ट्यूमर प्रमोटर, एनहांस प्रोलिफरेशन, देन ट्यूमर वायरसेस अल्टर जेनेटिक मटेरियल। ट्यूमर वायरसेस अभी बोला मैंने, आरएसवी, राउस सार्कोमा वायरस। अब देखो फिजिकल, अभी फिजिकल और केमिकल दोनों बोला था मैंने एजेंट की जो कैंसर करता है। फिजिकल के अंदर रेडिएशन बोले, और कुछ इरिटेंट भी है। ये कश्मीर के अंदर ये कांगरी, कोल पॉट बोल के यूज करते हैं, इससे स्किन कैंसर होता है। कश्मीर में जो बहुत ज्यादा ठंड होती है, कुछ एक फेस्टिवल होता है, छिल्लई कलन बोलते हैं, छिल्लई कलन, बहुत ठंड, तो घर में हीटर रखते हैं, इसको भी, स्पॉट को भी रखते हैं नजदीक, बट ये स्किन को ज्यादा टच हुआ तो इससे कैंसर होता है। बहुत ज्यादा फिट कपड़े पहने तो कैंसर होता है। कोई भी चीजें केमिकल जो हार्मफुल है वो अगर हम किधर भी लगा रहे स्किन के ऊपर और रोज यूज कर रहे, उससे भी कैंसर होता है। इसलिए मैंने बोला था कि कैंसर कॉजिंग जो चीजें, उनकी लिस्ट डे बाय डे बढ़ते जा रही है। बीटल टोबैको, टोबैको अगर च्यू किया तो लिप कैंसर होता है, स्मोकिंग किए तो ओरल और थ्रोट कैंसर होता है। इंडिया में लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन अगर कैंसर देखा जाए तो ये लंग कैंसर होता है मेल में, और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। स्मोकिंग से ये लंग कैंसर, ओरल कैंसर, पैरिंग्स, पैरिंग्स घसा, लैरिंग्स कैंसर, देन जैक टीथ, टंग कैंसर, जैक टीथ, टीथ आगे पीछे हो जाएंगे। टीथ को बाइंड करने के लिए नीचे गम है, गम के अंदर प्रोटीन होता है कोलेजन, जो इसको बाइंड करता है। तो जो लोग टोबैको ज्यादा खाएंगे तो वो गम्स जो वो हार्म हो जाएंगे उनको, जिगीवा बोले थे मैं अभी। देन यूवी रेस, ज्यादा देर तक धूप में खड़ा नहीं रहना है, यानी कि स्पेशली समर के अंदर, क्योंकि वो जो सनलाइट होती है वो हार्म करती है, तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है, कॉर्निया डैमेज हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है, सो ऑन। देन केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट में अभी इनकी बात कर चुके हैं हम, यानी कि कैफीन, निकोटीन, ये सब बोल चुका। पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब इंसेक्ट, सीआईडी, साइड का मतलब होता है टू किल, इंसेक्ट को मारने वाला। आर्टिफिशियल स्वीटनर, आजकल मतलब जो मार्केट में जब फेस्टिवल होते, दिवाली, ये वो मलाई, ये वो कुछ भी ऊपर वो लगाने का, ये जो है कवरिंग जो सिल्वर आती है, तो अच्छा बना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके अंदर कोई भी अनवांटेड केमिकल यूज कर रहे, कैसे भी बना रहे, तो वो भी कैंसर कर सकता है। सबसे बेस्ट घर का खाना। देन एनिमल प्रोटीन डाइट, देन हार्मोन, स्टेरॉइड, हार्मोन्स, स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड मतलब सेक्स हार्मोन, ब्रेस्ट कैंसर होता है इनसे। चिमनी वर्कर, तो स्क्रोटल कैंसर। अब देखिए ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिसीजेस रहते हैं, कौन कहां पर काम कर रहा है, तो वैसे भी डिसीजेस होता है। तो जहां पर कंपनी और केमिकल्स रिलीज हो रहे तो वो केमिकल्स हार्मफुल रहेंगे। चिमनी बोले पता, वो बड़ा ये होता है जहां से एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं, वो। देन डाई वर्कर, ब्लैडर कैंसर, डाई कलर देना, कपड़ों को कलर देना, गाड़ी को कलर देना, वो ऐसा रहता है, अलमारी को कलर देते तो ऐसे स्प्रे निकलता देखिए, तो वो केमिकल वो हमेशा बांध के रखते हैं नोज को। अगर
वो केमिकल उनके ऊपर गिरता होगा बार बार, तो वो कैंसर कर सकता है। रेडिएशन, रेडिएशन का मीनिंग मैंने बोला है, हीट ट्रांसफर होना वेव्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं रेडिएशन, उस प्रोसेस को। तो रेडिएशन कौन कौन से, एक्सरे, कॉस्मिक रेस, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। वर्ल्ड वॉर टू रेडिएशन इंक्रीज ल्यूकेमिया इन जापान 1945, और 9 अगस्त 1945 के वक्त क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब डाला गया था, स्मॉल मैन और फैट मैन। तो क्या हुआ था, उस दिन भी रेडिएशन निकले थे, 13 किलोमीटर का बड़ा गड्ढा गिर गया था। रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है, स्किन पिघल जाती है आगे वाले की, और 2-3 दिन के बाद तो रेनफॉल भी होता है, एसिड रेनफॉल, उसमें भी जो गया वो भी उसके लिए भी हार्मफुल है। तो ये रेडिएशन हार्म करता है। देन बायोलॉजिकल एजेंट, वायरसेस बोला, वायरस, पैरासाइट और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये चीजें मैं बोल चुका था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, कैंसर एंड जीन्स। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस कैरी वायरल ऑन्कोजीन्स, अभी नाम मैं बोल चुका था। ऑन्कोजीन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स गेट एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन। इसीलिए मैं बोला था कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर के लिए जो जीन है वो मेरे में, आप में, सभी में है, और वो जीन है ऑन्कोजीन। वो एक्टिवेट हुए तो ही कैंसर होना, और क्यों एक्टिवेट होंगे तो मैंने रीजन पिछली स्लाइड में बोला है। देन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनहिबिट अबनॉर्मल ग्रोथ, देन सेल ग्रोथ रेगुलेटरी जीन्स मैनेज द सेल प्रोलिफरेशन, और कैंसर कैसा स्प्रेड होगा तो ये बोल चुका मैं, मेटास्टासिस बोल चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट, कैंसर डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे समझ में आएगा कैंसर हो रहा है या किसी को हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कैंसर तब डायग्नोस होता है जब बचने के चांसेस नहीं, पहले समझ में नहीं आता उसको कैंसर, क्योंकि पहले अर्ली स्टेजेस में समझ में आया क्योर हो सकता है। तो कौन से स्टेजेस है, देखो बायोप्सी होता है। व्हाट इज इन बाय बायोप्सी, सो they will take small portion of the part from where they assume that that particular part is affected. Why they will assume, because if we are complaining about that particular part is going to be there is a pain in a particular part, suppose let's say that particular person is suffering from the shortness of breathing, he is feeling uncomfortable, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो लंग का बायोप्सी मतलब वहां से कुछ सेल्स निकालेंगे। लीवर में वैसा लग रहा है, लीवर के सेल निकालेंगे, और उन सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, स्टडी करेंगे। फिर उस सेल के अंदर नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया चेंज दिखेगा, क्या क्या चीजें चेंज दिखेंगे मैं बोल चुका हूं पहले वाली स्टेज में, उधर स्लाइड में बोल चुका हूं। वो चेंजेस दिख रहे तो समझ में आता है कैंसर हुआ है। देखिए वैसे हमको रोज हम सपोज वैरायटी ऑफ चीजें खा रहे, लोग चिप्स खाए, कुरकुरे खाए, कोई कुछ खा रहा है, तो ये केमिकल की वजह से रोज कैंसर होता है, बट रोज रिपेयर भी होता है, बट वो बढ़ता ही गया तो फिर हार्मफुल है। अब आप बोलोगे रोज कैसे और रोज कैसे क्योर हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जब ये कैंसरस सेल तैयार होती है तो नॉर्मल सेल एक MSC नाम का एक प्रोटीन होता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये 100 सेल है, इसमें से कुछ सेल को कैंसरस सेल हो गए, बाकी के नॉर्मल है, तो ये प्रोटीन जाके उनके ऊपर कैप लगा के आता है, ये कैंसरस सेल है। तो हमारे नॉर्मल सेल कुछ केमिकल तैयार करके, मतलब लाइसोसोम ये वो, इसको मार देता है और कवर होता है। बट अगर हम कंट्रोल में नहीं और हम कुछ भी चीजें खाते जा रहे तो वो बाद में अफेक्ट करता है। देन पैप टेस्ट फॉर सर्विकल और जेनिटल कैंसर, सर्विकल कैंसर फीमेल के अंदर और सम जेनिटल कैंसर। देन इमेजिंग, एक्सरे, सिटी स्कैन, सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं इसको, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी में 3D एक्सरे इमेजिंग, MRI के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स, इससे डायग्नोस किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन लेवल पर जीन में क्या चेंजेस हुए उससे आइडेंटिफाई करके कैंसर को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए डिटेक्शन के लिए। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड टू द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहां पर समझ जाने का इतना। देन एमिस टेस्ट आइडेंटिफाई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, मतलब किससे कैंसर होता है, मैं बोल चुका कार्सिनोजेनिक का मतलब ही क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट। अब ये बोले देखो यहाँ पर 1 by 1, और बायोप्सी क्या रहता है, मैंने बोला है कि जहां पर इनपे यानी कि जहां पर पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, और वहां पर सपोज कैंसर है, तो वहां की सेल निकाल के स्टडी करता है कि ये कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है।
देन इमेजिंग टेक्निक बोला, यूज ऑफ एंटीबॉडीज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये बायोप्सी बोले, थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू स्टेन। स्टेन का मतलब होता है कलरिंग करना, बॉडी से जो सेल निकाले उसको स्टडी करना, तो उसको स्टेनिंग करते हैं, कलर देते हैं डाइस से और स्टडी करते हैं। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है डिसीज। तो ऐसे देन इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है ये, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल दोनों स्टडीज होता है। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट होंगे फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट। तो वैसे ये देखो, ये बोन मैरो कोराटॉप्स है, अब ये लिया है मतलब बोन मैरो, ये वो ऐसे। और ये ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी नीडल्स, तो इससे निकालेंगे सेल्स को। और जहां पे इमेजिंग देख रहे थे, रेडियोग्राफी यूज फॉर एक्सरेस, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये सो ऑन, 3D इमेज देखेंगे इंटरनल ऑब्जेक्ट की और वहां से डायग्नोस करेंगे। देन एमआरआई बोल चुका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से क्या करेंगे, ये डिटेक्ट पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब फिजियोलॉजी का मतलब होता है लाइफ इंटरनल प्रोसेस, वो डायग्नोस करना। तो ये दिख रहा है, ये एमआरआई मशीन है। और ये देखेंगे मतलब ट्यूमर डायग्नोस, ये देखेंगे किधर गया ये ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर लगभग तो बेनाइन नहीं होता है, इसका सर्जरी मतलब अवे कंडीशन में होता है, एनेस्थेसिया ज्यादा यूज नहीं होता है और बचते भी है लोग इससे, ऐसा नहीं कि डेथ हो गई okay। क्योंकि बेनाइन है, मैलिग्नेंट रहता तो खतरनाक था, मैलिग्नेंट हार्मफुल है। उसके बाद और दूसरे मेथड देख सकते हैं यहाँ पर, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस और डिटेक्शन के लिए ब्रेस्ट एग्जाम, मैमोग्राफ, मैमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट वही, अल्ट्रासाउंड, इसको यूएसजी बोलते हैं, सोनोग्राफी, सोनो साउंड। तो वो एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सिंटोमैमोग्राफी, बायोप्सी बोल चुका मैं ये सब। लंग फंक्शन टेस्ट के लिए कैसा करेंगे ये सब, यानी कि बोले वाले कौन कौन से टेस्ट है, ब्रोंकोस्कोपी, ये लंग के अंदर कोई कैंसर हो रहा है, सिटी स्कैन, ये कैंसर कहां पर हो रहा है और वो पर्टिकुलर पार्ट डायग्नोस करने के लिए, सो ऑन। ये सब चीजें पढ़ ले समझ में आता है, जो काम का है वही बोलूंगा। पेट स्कैन, जो लीवर बोन वहां के कैंसर डायग्नोस करने के लिए। अब और कुछ टेस्ट भी बोले वाले, सीबीसी तो हमको पता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। अगर किसी को ब्लड कैंसर होगा तो ब्लड के अंदर के जो ब्लड सेल्स है, जो पैरामीटर है वो चेक करेंगे, कम ज्यादा हो रहे क्या, प्लेटलेट्स बहुत ही बढ़ जा रहे क्या, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाना नॉर्मल से इंडिकेट करता है कैंसर, नॉट ऑल टाइम बट जो है वो, मतलब और फर्दर टेस्ट करके। तो इम्यून सिस्टम कैंसर लाइक ल्यूकेमिया, उसके बाद लिम्फोमा, ओमा मतलब ट्यूमर बोला था, ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट, ये सब टेस्ट है, CA-125 सो ऑन। बहुत ज्यादा दिए वाला है तो इतना पढ़ लो, क्योंकि ये ऐड करने के लिए मैंने बोला था, मैंने ऐड किया था, यानी कि पढ़ने के लिए बोला था पहले भी। उसके बाद कॉमन कैंसर साइट, कैंसर कहां कहां पर होता है, तो स्किन में, अब स्किन, माउथ, अब स्किन का कैंसर ये बाहर की सरफेस पे जो हो रहे वो इपिथेलियल बोलते हैं, माउथ कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर, सो ऑन, ये सब साइट है जहां पर कैंसर हो सकता है, दिस ऑल आर द साइट्स। और कहां कहां पर होने के मतलब किस किस कैंसर से कितने कितने डेथ हो गए, ये यहां पर मैंने एक चार्ट ऐड किया, तो वो चार्ट से समझ में आएगा। इधर दिख रहा है यही चार्ट, ये देखिए। उसके बाद पॉसिबल सिम्टम, ये यहां पर जो दिख रहा है, ये लंग कैंसर और ब्रोंकोस से 29% डेथ होता है, प्रोस्टेट कैंसर से 11% डेथ होता है। प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पर, यानी कि जहां पे रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसका कैंसर। कोलोन और रेक्टम का कैंसर, लगभग 9% डेथ इससे होते हैं। कोलोन और रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, जहां पर लास्ट बटन पार्ट बोलते हैं, जहां पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है बाहर निकलने के पहले, पैनक्रियास, सो ऑन। तो ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पर पार्ट अगर ये पढ़ लिए स्क्रीनशॉट निकाल के, तो समझ में आ जाएगा किस कैंसर से कितनी डेथ हो रही है। उसके बाद पॉसिबल सिम्टम, कैंसर के सिम्टम क्या है, तो परसिस्टेंट कफ, हमेशा कफ रहता है ऑल टाइम। ये देखो, कफ तैयार होना मतलब म्यूकस है, म्यूकस हमारे एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, मतलब जहां पे हम MALT बोलते हैं,
म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लगभग 50% से ज्यादा पार्ट कवर करता है बॉडी में। ये पैथोजन कुछ है तो उसको निकाल देता है। जैसे घर पे ये अगर हमको टाइल्स कुछ साफ करना था, हम पहले झाड़ू मारेंगे बाद में पोछा लगाएंगे, तो वैसे शरीर में अंदर से पोछा लगाना है तो म्यूकस लगता है, बट वो नॉर्मल से हर बार ज्यादा तैयार हो रहा है, मतलब कचरा ज्यादा हो रहा है, अंदर अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ये इंडिकेट करता है। तो ये परसिस्टेंट कफ, होरनेस, आवाज में थिकनेस आना, मेल की आवाज में होरनेस होता है, ये बड़ा ऐसा आवाज वैसे। देन चेंजेस इन द डाइजेशन, बॉयल मूवमेंट, डाइजेशन बराबर नहीं होता, जो स्किन के ऊपर वाट या मोल टिल जो रहते हैं उनका शेप चेंज होता है। अब बोलोगे ये हमको कैसा समझ में आना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर मतलब एग्जामिनेशन किए तब समझ में आता है, नॉर्मली नहीं समझ में आता। ब्लीडिंग भी ज्यादा होता है। लंप और लंप इन अ ब्रेस्ट, लंप का मतलब होता है ट्यूमर के जैसा पार्ट, गांठ, गांठ मतलब लंप। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाता है, मतलब कम होता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। कम पहले मतलब डिसीज कंडीशन में दिखता है, बट इसके अंदर बोला मैंने कि ट्यूमर सेल्स बढ़ते गए न्यूट्रिशन ज्यादा लगता है, खाना ज्यादा डिमांड करते हैं, वजन बढ़ता है। बट सीवियर केसेस में 10% वेट कम भी होता है, वजन कम हो रहा है, ये मैंने 10% कम हुआ, वो मैंने 10% कम हुआ, तो ये भी एक इंडिकेशन है। नॉन हीलिंग अल्सर्स, कहाँ पे अल्सर हो गए, जैसे वो मुंह आना, छाले, ये वो बोलते हैं ना, वो छाले अगर कम हो रही नहीं तो वो भी इंडिकेट करता है कैंसर। अब नॉर्मल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त फीमेल में ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है नॉर्मल से, नॉर्मली बोला मैंने लगभग 30 to 40 ml, समटाइम अप टू 50 ml पर डे फॉर 3 to 4 days, बट उससे भी अगर ज्यादा अगर होता है, 5 days का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेस होता है, तो उसके आगे प्रोलिफरेटिव, ओवुलेटरी और फॉलिकुलर, ये सिक्रेटरी फेस बोल चुका मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में से, तो वो भी इंडिकेट करता है, नेचुरल ओपनिंग से इंडिकेट करता है कैंसर। स्किन, माउथ, कहां से भी नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कैंसर। उसके बाद ये अलग अलग टाइप के कैंसर बोले, ब्रेस्ट कैंसर में लंप अभी बोला है, ट्यूमर डेवलप होता है ब्रेस्ट में, यहां पर दिख रहा है, ये ब्रेस्ट में यहां पर एक ट्यूमर दिख रहा है। निपल इन्वर्टेड और निपल से डिस्चार्ज निकलते रहता है, ये भी एक सिम्टम है। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है, ये मैं बोल चुका था। तो यहाँ पर निपल, ये बोले अपन कि इन्वर्टेड हो जाएगा और डिस्चार्ज निकलेगा। चेंजेस इन द ब्रेस्ट शेप, मतलब चेंज हो गया नॉर्मल से ज्यादा। तो इसके बाद सोलन लिम्फ नोड, सोलन का मतलब फूक जाना, लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या होते हैं, ये मैंने इम्यून सिस्टम पार्ट में एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं। देन ब्रेस्ट और निपल पेन, यहाँ पर पेन होना, टेंडरनेस आना। तो इसके बाद ब्रेस्ट डिम्पलिंग, स्किन टेक्सचर, ये दिख रहा है, यानी कि इन फोटो को देखे समझ में आ जाएगा। फीमेल में ये कैंसर ये भी दिखता है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता चुका हूं आप। तो इसके बाद यूटेराइन कैंसर, यूटेरस को वुम बोलते हैं, गर्भाशय। लंग कैंसर, नियरली 70% ऑफ वुमेन आर डायग्नोस्ड इन एडवांस स्टेज, मतलब बाद में समझ में आता, पहले समझ में नहीं आता, टाइम लगता है। तो सिम्टम को इग्नोर ना करें। डायग्नोसिस कैसा होता है ये बोला मैंने, किस किस स्टेज से, सिम्टम क्या दिखते ये तक बोले वाले, तो वो देखना। उसके बाद 1 in 78 वुमन विल गेट ओवारियन कैंसर, मतलब लगभग 80 में से एक वुमन को ओवारियन कैंसर होने के चांसेस होता है। एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस, जो फीमेल के अंदर सर्विक्स कैंसर कर सकता है। बट अच्छी बात यह है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, और जो फीमेल्स को फ्री में भी दिया जाता है, तो अच्छी बात है, यानी कि डिसीज ना हो ये। देन 5th लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड टू डेथ इन वुमन, मतलब लगभग जो फीमेल में डेथ होती है इसके अंदर 5वां नंबर का रीजन ये है कि कैंसर से डेथ होती है। तो साइन सिम्टम बोले क्या दिखेंगे ओवेरियन कैंसर के, फीलिंग नीड ऑफ यूरिनेट अर्जेंटली और ऑफन, मतलब यूरिनेशन ज्यादा होगा। ट्रबल इन ईटिंग, फीलिंग ऑफ फुल क्विकली, मतलब लगता है भूख लगी है पर थोड़ा ही खाते पेट भरे जैसा लगेगा। पेल्विक और अब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग, गैसेस पास होना, वैसा होता है। तो ये सिम्टम्स है। कैंसर डिटेक्शन, ये बोले यूज ऑफ एंटीबायोटिक अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इससे भी कैंसर डायग्नोस होता है, अलग अलग मेथड है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोले थे ये। उसके बाद ट्रीटमेंट,
कैंसर हो ही गया, किसी को डायग्नोस हो ही चुका है, अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो ट्रीटमेंट में देखें तो देखो ये मेनली रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, या कंबाइनली ये सब ट्रीटमेंट यूज करते हैं। या एक फ्लावर भी है, उसको भी यूज करते हैं, कैथरंथस रोजियस, विनिक्रास्टिन और विनिब्लास्टिन 2 ड्रग वहां से तैयार होता है। सदाफुली बोलते हैं उसको, पेरिविंकल, कैथरंथस रोजियस। तो रेडियोथेरेपी मींस ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लेथली, लेथली मतलब मारना उनको, विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। उसके बाद मतलब रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन पास करना, जैसे कहां पर ट्यूमर हुआ तो वहां पर रेडिएशन पास कर रहे, उस रेडिएशन से क्या होता है, वो ट्यूमर मर जाता है। जैसे हम किडनी स्टोन में मैं बोला कि लेजर यूज करते हैं, लेजर, LASER, लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देन कीमोथेरेपी, यूज ऑफ कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल्स, मेडिसिन, ड्रग्स, मेनी ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, ये होता है, और एनीमिया भी होता है। जब कीमोथेरेपी चालू होती है पेशेंट में कैंसर के वक्त, बाल निकल जाता है, क्योंकि हीट ये वो ज्यादा हो जाएगा, केमिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। देन एनीमिया, एनीमिया मतलब समझ में आता है, रक्तक्षय। इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट्स आर गिवन अ बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, मतलब अल्फा इंटरफेरॉन ऐसे केमिकल दिए जाते हैं विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है, जैसे अगर मेरे स्किन के ऊपर यहाँ पर अगर प्रोटीन कोई एड्स का वायरस भी अगर गिर जाता है तो इंटरफेरॉन उसको हार्मलेस बना देता है, तो वो एंटीवायरल प्रोटीन है, तो हेल्प द ट्यूमर टू डिस्ट्रॉय। उसके बाद सर्जरी, ये एक ट्रीटमेंट है जिससे निकालते हैं, यहां पर देख रहे हैं सर्जरी। कीमोथेरेपी, ये साइड में जो दिख रहा है वो डायलिसिस मशीन है, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं इसको, डायलिसिस मशीन को। और रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस दे रहे, रेडिएशंस ट्यूमर सेल को जला दे और उसको खत्म करे। इम्यूनोथेरेपी में बोले अल्फा इंटरफेरॉन को हम यूज कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल 3 थिंग्स, दैट इज कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। यहां पर और वापस बोला है, देखो सर्जरी, जो ट्रीटमेंट में सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी में जो ड्रग इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, पी फॉर्म कैथरंथस रोजियस बोला मैं, ये पेरिविंकल या सदाफुली बोलते हैं इसको, पेरिविंकल से बनता है ये ड्रग, विनिक्रास्टिन और विनिब्लास्टिन। टैक्सॉल फ्रॉम टैक्सस, ये एक जिम्नोस्पर्मिक वुड है, इससे बनता है मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट एंड ओवारियन कैंसर। इम्यूनोथेरेपी, ये बोले अल्फा इंटरफेरॉन जो ट्यूमर को खत्म करता है, और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट तीनों को कंबाइन करो, और ऑनगोइंग एफर्ट है कि कैंसर के ऊपर वैक्सीन बनाना। जैसे मैंने बोला कि फीमेल के अंदर HPV, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बना चुके, तो नोबेल प्राइज मिला है हराल्ड जूर हाउसेन इनको 2008 में। एचपीवी कॉज, मतलब HPV ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस बोल चुका मैं, ये सर्वाइकल कैंसर करता फीमेल में, ये बोल चुका मैं। ये डिफरेंट काइंड के रिबन्स दिख रहे हैं। 4 फरवरी को हर साल को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, तो अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं लोगों में कैंसर के अगेंस्ट, कैंसर कैसे होता है ये मैंने बोला है, क्यों होता है, उसके डायग्नोसिस क्या है, उसके सिम्टम क्या है, हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम अभी बोल चुके हैं, तो देख लेना ये सब यहां पर। और ये डिफरेंट यानी कि रिबन्स दिख रहे इधर, ये, और अगेंस्ट अलग अलग डिसीज। अब कैंसर देखो, डिफरेंट टाइप का जो कैंसर होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स है, यहां पर रेडियो आइसोटोप जैसे बोले ये वो। अब देखो कैंसर जो वो अलग अलग टाइप के कैंसर है, जैसे सार्कोमा, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद ग्लैंड का अगर कैंसर होता है तो इसको एडिनोमा बोलते हैं, लिम्फ का हुआ तो लिम्फोमा बोलते हैं। तो ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, सार्कोमा, लिम्फोमा, एडिनोमा, लिम्फोमा, ये जो नाम है, मतलब जहां जहां पर वर्ड ओमा लगता है। कैंसर जेनेटिक नहीं है, बट एक कैंसर जो रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं, रेटिनो, ये आई के पीछे सबसे पीछे की मेम्ब्रेन पता है जहां पे इमेज फॉर्म होती है, रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना को ट्यूमर हुआ तो रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। ऑनली वो एक कैंसर है कि जो जेनेटिक है, बाकी के कैंसर जेनेटिक नहीं है। तो क्या बोला मैंने, डिफरेंट टाइप के कैंसर भी होता है, उसके लिए फोटो लगा देंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के। सार्कोमा मतलब क्या है, कार्सिनोमा